Hello students, in this session today I am going to explain you how to write a speech. On one hand, the students of 8th, 9th, 10th have to write this question in 100 to 120 words. On the other hand, students of class 12th, 11th, 12th have to write the same question in 120 to 50 words. Speech writing, as I explained you article writing, the format is almost same, only the beginning of article and speech writings are different. Though this question needs a proper writing skill, still if you keep these points in your mind, you will be able to write a good speech. So please try to understand each and every point till end. So hello my dear students, welcome back to my class Buds of Wisdom. As I mentioned you earlier, format of speech writing is same as of article writing. It is divided in three main parts: opening, main body and then closing. Main body is again subdivided in three parts: introduction, exposition and winding up. Winding up, if you are a student of class 9th and 10th, 8th and 10th, you can include only introduction and exposition in your question, in your answer. But if you are a student of class 11th and 12th, try to write winding up point also. Okay, so see, in article writing we write title in block letters. But be aware, in speech writing we need not write title at the beginning of the speech. At most of the places you will see that people write title also at the beginning of the speech, but that is not necessary. Title at the beginning of writing is compulsory in article writing, okay, but not in speech writing, because in speech writing we write title in the introduction when we address to the public. Okay, so during that time only we have to announce our title. So at that time we have to mention the name of the title. Okay, still if you wish to write title at the beginning you can write, but you are not going to have extra marks, okay, for that. So opening, do not write title at the beginning of the speech. Okay, then opening, choose a hook to grab the audience attention and arouse the curiosity of the listener. अब हमको जब स्टार्टिंग करना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले हमें कोशिश करनी है, यानी कि हुक अप मीन्स टू हुक टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन, यानी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट हमको स्टार्ट करना है, यानी कोई ना कोई ऐसे पॉइंट से हमारी स्पीच को स्टार्ट करना है ताकि जो ऑडियंस है उनका जो ध्यान है वो आपकी स्पीच की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. ओके, आपकी स्पीच की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागे कि आखिर जो स्पीकर है वो क्या बोलने जा रहा है. तो वो हुकअप्स कौन से हो सकते हैं जिससे आप ऑडियंस का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं. अ गुड स्लोगन और कॉट, आप अच्छा सा कोई भी अच्छा सा स्लोगन यदि आपको याद हो, कोटेशन याद हो, तो उसी से आप स्टार्ट करिए अपनी स्पीच राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग a question of speech writing on television, uses or misuses of television, so you can start with this slogan: 1 year out of 10 is spent in watching TV. Or if you have to write a speech writing on education, so you can add this line also, the slogan also: I want my child's education to be holistic. Then
सेइंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल और फेमस पर्सनैलिटी, आप किसी फेमस पर्सनैलिटी की कहीं भी बात को भी अपने स्पीच की स्टार्टिंग में रख सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर किड्स एंड हैंस शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, सेज गगन नारंग, London Olympics bronze medalist. And after writing the saying, you will start your addressing. Honorable principal, worthy teacher, जिस तरीके से हमको स्टार्ट करना है इसी तरीके से स्लोगन बोल करके भी आप डायरेक्टली इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके, डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। Asking a question to arouse curiosity, the most effective way of attracting the attention of the public. अगर आपको स्लोगन नहीं याद आता है तो आप डायरेक्टली ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए उनसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के बाद हमको एड्रेस करना है। Have you also left your tiffin today just to have something from your school canteen? Would you like to take dowry in your marriage? Would you also like to take dowry in your marriage? Do you know 8 to 10 lakh people die every year due to tobacco related disease? देन ऑनरेबल प्रिंसिपल वर्दी टीचर्स। ठीक है, तो समझ रहे ना, आप कोई भी एक पॉइंट को ले सकते हैं, उसके बाद एड्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन स्टार्ट्स बॉडी ऑफ स्पीच। बॉडी ऑफ स्पीच फॉर्मल एड्रेस, यानी ओपनिंग अप हम करेंगे स्लोगन के बाद या फिर कोटेशन के बाद या फिर किसी भी सेइंग के बाद हम प्रॉपर अपना एड्रेस स्टार्ट करेंगे। फॉर्मल एड्रेस टू द चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर और लिसनर, यानी कि उस पब्लिक में जो भी उस फंक्शन में जो भी लोग उपस्थित हो उनको हमें क्या करना होता है, एड्रेस करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप विश कर सकते हैं अ वेरी वार्म एंड फाइन गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट हियर, ऑनरेबल प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स और ऑनरेबल डायरेक्टर सर, चीफ गेस्ट, माय वर्दी कलीग्स, यानी कि आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि आज आप स्पीच कहाँ पर बोलने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप एड्रेस लिखेंगे। आफ्टर दैट यू विल टेल योर नेम। आई एम I-1, I- यानी आपका जो भी नाम है, फ्रॉम स्टैंडर्ड और ग्रेड और क्लास 8, 9, 10th वट एवर ABC। ओके, आई एम गोइंग टू कॉमा का यूज़ करके आई एम गोइंग टू शेयर माई व्यूज़ ओवर और अबाउट द टॉपिक, फिर टॉपिक नेम लिख देंगे, नेम लिखेंगे। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ओवर और विश टू प्रेजेंट माई आइडियाज़ ओवर। इसमें से कोई भी एक पॉइंट को आप ले सकते हैं। बॉडी ऑफ स्पीच में second point that you need to remember, do not write title in block letters like article writing। जब आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आर्टिकल राइटिंग की तरह यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में टाइटल नहीं लिखना है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज द टाइटल विथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। आपको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे आप देख सकते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में अपने टॉपिक को लिखना है, लाइफ इन रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टाइटल को लिखा है। नेक्स्ट वन, स्टार्ट फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ द टाइटल इन कैपिटल लेटर एक्सेप्ट ऑक्सिलरी वर्ब और प्रपोजिशन और कंजक्शन ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमको ब्लॉक लेटर में तो नहीं लिखना है, लेकिन जो मेन वर्ड्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, और जो छोटे छोटे प्रपोजिशन हो गए, जैसे इन हो गया, एंड कंजक्शन हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से या ऑक्सिलरी वर्ब अगर लिख रहे हैं आप तो वो सब हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे।
नॉर्मली तो ध्यान रखें कि ऑक्सिलरी वर्ब जो टाइटल में होता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का मोस्टली यूज़ नहीं होता है, उसका यूज़ से बचें इफ़ेक्टिव टाइटल को बनाने के लिए। फिर भी अब अगर कभी लिखना पड़े तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ओके, देन कम्स सो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ बॉडी ऑफ स्पीच. नाउ कम्स एक्सपोजिशन. Now see, in exposition means how you are going to express your views, how you are exactly going to present your views or share your ideas or going to share your thoughts regarding the topic. First of all, if you want to make your speech writing very effective, okay, in the same way article writing also, as I said you, the format is almost same. So pressing statics to prove your point. ओके, यानी अगर हो सके कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कहीं से भी आपको डेटा मिल सकता है लिखने को, तो आप डेटा शो करते हुए, उसके स्टैटिक्स शो करते हुए अपने पॉइंट को शो कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गेटिंग अ टॉपिक ऑन COVID-19, for example, if you are having your topic regarding any problem, just show the data. Suppose you are having the topic dowry system, Dahej Pratha. Okay, so you can mention how many cases have been filed of dowry system, against dowry system, how many brides had been killed or were forced to die, okay, or did suicide, in which months the data increased, okay, in which months the data went down. इस तरीके से जो भी आपके पास डेटा आपके पास है तो आप उसको लिख सकते हैं अगर आपको याद है. अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप एक अंदाजे से एवरेज जो है आप डेटा को ऐड कर सकते हैं. ओके, एग्जामिनर विल ओनली सी योर writing skill, how you are presenting your views. Okay, then originality must be there. इसके बाद एग्जाम्पल्स अगर आप शो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ राइटिंग. ठीक है, अगर अपनी बात को आप रख रहे हैं और उसके साथ अपने पॉइंट्स को, अपने एग्जाम्पल्स को रख रहे हैं, ओरिजिनल एग्जाम्पल्स को रख रहे हैं, तो ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है राइटिंग स्किल का, स्पीच राइटिंग का. देन मेक द पीपल अवेयर. इसके बाद आप उसी बीच में कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको आगे जा कर के दिक्कत दे सकती है. यहीं पर बीच में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पब्लिक से. ठीक है, ताकि वो और क्यूरियस हो आपकी बात को जानने को. Then humor and repetitions are allowed to catch the attention of the speaker. देखिए, नॉर्मली जो आर्टिकल राइटिंग है वहाँ पर आप रिपीटिशन से बचें तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि स्पीच राइटिंग में हम डायरेक्टली पब्लिक को क्या कर रहे हैं, उनका अटेंशन जो है वो सीख कर रहे हैं, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम जैसे कि डियर फ्रेंड्स, डियर टीचर, डिडंट यू हियर, डोंट यू हियर, इस तरीके से आप कुछ भी अच्छी फ्रेजेस को थोड़ा थोड़ा बीच में रिपीट कर सकते हैं बार बार. ठीक है, ताकि आपकी जो बात है उसको, उस पर जो पब्लिक है उसका ध्यान और ज़्यादा अच्छे से जा सके. ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल राइटिंग में रेपिटेशन को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन स्पीच राइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं रेपिटेशंस, लेकिन ओवर वहाँ पर भी नहीं करना है. ठीक है, ह्यूमर, थोड़ा थोड़ा ह्यूमर भी डाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्योंकि स्पीच राइटिंग है, हम डायरेक्टली वो एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को. ठीक है, तो हमारी स्पीच से वो लोग बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो, तो कहीं कहीं पर हम थोड़ा सा ह्यूमर भी डाल सकते हैं. द एंड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पीच, वाइंड अप. सी, यू विल नॉट एंड योर speech writing suddenly.
slowly you will come to the end of your topic. वाइंड अप टॉपिक जो है वो 11th एंड 12th स्टूडेंट्स को करना है, 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को करना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर क्लोजिंग करनी है, ठीक है। 9th और 10th के स्टूडेंट्स, 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स ओनली डायरेक्टली क्लोजिंग कर सकते हैं, और 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को पहले वाइंड अप करना है, उसके बाद क्लोजिंग करना है, ओके। क्योंकि क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए वर्ड लिमिट ज़्यादा होती है, इस वजह से। सो वाइंड अप। नाउ हाउ टू वाइंड अप योर टॉपिक। वार्निंग। आप एक वार्निंग के साथ धीरे धीरे करके अपने पॉइंट को एंड कर सकते हैं। If we don't care our environment today, the day will not be far when our environment will start killing us. तो इस तरीके से वार्निंग यानी कि डराते हुए, थोड़ा सा अलर्ट करते हुए, एक वार्निंग देते हुए हमको एंडिंग की तरफ आना है। देन मेक एन अपील। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके भी अपने एंडिंग की तरफ आ सकते हैं। गिव सजेशंस। आप अपनी कोई भी एक सलाह दे सकते हैं ऑडियंस को, कि ताकि आगे जाकर के वो जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा ना बढ़े। तो इस तरीके से वार्निंग देते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए मेकिंग एन अपील। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, please come and join hand to hand if we really wish to come out of this problem together. Okay, give suggestions. आपके पास कोई अच्छा सा सजेशन हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है फाइनल क्लोजिंग। तो फाइनल क्लोजिंग जो है, अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं तो डायरेक्टली जो वाइंडिंग अप के जो पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं को लेकर के क्लोजिंग कर सकते हैं। यदि आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो इस तरीके से वाइंडिंग अप में अपने पॉइंट्स को रखते हुए उसके बाद क्लोजिंग करना है, बिल्कुल उसी तरह से। सिमिलर टू आर्टिकल, द कंक्लूजन ऑफ द स्पीच मस्ट बी वेरी कैची एंड इम्प्रेसिव। बहुत ही कैची होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, बट मस्ट बी ब्रीफ बट स्ट्राइकिंग एंड। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन में लिखना है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्राइकिंग एंड, यानी स्ट्राइकिंग इस तरह से एंड करना है कि लीव द ऑडियंस विद अ क्वेश्चन, शॉक और सरप्राइज। कि इंसान जो है यानी ऑडियंस जो है वो शॉक में रह जाए या सरप्राइज में रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से एंड करना है कि जो लीव द ऑडियंस विद अ क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन के साथ भी एंड कर सकते हैं अपनी स्पीच को, ठीक है। कोई ऐसी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो शॉक में रह जाए या सरप्राइज में रह जाए। नाउ यू मस्ट डू वन थिंग, यू शुड take any topic of speech writing and try to write in your own words, because speech and article writing, in fact any topic of a writing section, need proper practice, and for enhancing your good राइटिंग स्किल यू नीड प्रॉपर प्रैक्टिस। ओके, तो आप लिखते समय इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस नहीं भी है तो भी अगर इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो एक के बाद एक आप अपनी बात को कह सकते हो। हाँ, लैंग्वेज अच्छा करने के लिए, राइटिंग स्किल अच्छा करने के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। मीट यू सून with my next session. Till then, goodbye. Happy learning.